ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 3 ਸਟੈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਟੂ ਬਿਕਮ ਪੰਜਾਬ PCS ਦਾ ਆਫਿਸਰ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ क्या सिलेबस पढ़ना पैना है, क्या कंटेंट पढ़ना पैना है टू बी एबल टू क्लियर द फर्स्ट स्टैप ऑफ पंजाब PCS एग्जामिनेशन, दैट इज़ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ 1 ਪੇਪਰ 2। ਪੇਪਰ 1 ਬੇਸਿਕਲੀ GS ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ 2 CSAT ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ 200 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 80 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ 2.5 ਮਾਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਸੇਮ ਡੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ GS ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ PCS ਸਿਲੇਬਸ। ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲਿਟੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਹਿਸਟਰੀ, ਜੋਗਰਾਫੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ CSAT ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਕਲੀਅਰ these steps to clear this paper, ਰਾਈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਫਰਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਰੀਫਲੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨॉट ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ। मतलब क्या है कि जो ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। PCSC ਕੈਨ ਆਸਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵੈਸੇ ਤੋਂ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਜਨਰਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਆਪਦੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਲਾਈਕ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਐਟਮ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਟਮ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੈਟ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ, ਰਾਈਟ, ਐਸਿਡਸ, ਬੇਸਿਸ, ਸਾਲਟਸ, ਕਰੋਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 12ਵੀਂ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 12ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਸੀਜ਼ਿਜ਼, ਹੈਲਥ, ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲਸ, ਮਰੀਨ ਲਾਈਫ, ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਰੀਨ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਐਨੀਮਲਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਡਿਸੀਜ਼ਿਜ਼, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਅਗੇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕਸ, laws, motions, gravitation, Archimedes principle, Newton's law, 3 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਅ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਲਾਅ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਲਾਜ਼, ਰਾਈਟ। ਲਾਈਟ, ਸਾਊਂਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਟਲੀਸਟ 10th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਡਿਸੀਜ਼ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। LED CFL ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਅਗਨੀ ਮਿਸਾਈਲ, ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਨੀ ਮਿਸਾਈਲ ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ 5 ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀ ਚਾਹੇ ਮੇਨਸ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਵਿਨੇਗਰ, ਲਿਟਮਸ, ਆਇਲ ਜ਼ੈਪਰ, ਅਗੇਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬੇਸਡ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं देखो। तो ये तुसी सिर्फ अगर आप बेसिक सिलेबस आपदा पढ़ो कंप्लीट करो तो इट इज़ लाइकली कि तुसी ज़्यादातर ये क्वेश्चनस के आंसर कर सकोगे। एक ज़्यादा औखे क्वेश्चनस नहीं है, डायरैक्टली तुहाडी NCERTs जो पूछे गए ने या करंट अफेयर्स जो, राइट। इसीलिए बेसिक्स तुसी आपदे स्ट्रॉन्ग करने हैं। बेसिक्स प्लस करंट अफेयर्स इज़ वॉट विल टेक यू टू दी सक्सैस। और बेसिक्स ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ बेसिक NCERTs एंड बुक्स ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ मैं अलग तो वीडियो बनावांगी, राइट। दैन आ गया इन्वायरमेंट। सैकेंड पेपर जोड़ा तुसी देना होना है इन्वायरमेंट स्टडीज़ का। ये सब टॉपिक्स है। कुछ टॉपिक्स तुसी जोग्राफी च कवर कर लेने हो, जिवें सॉइल टाइप्स वगैरह सब आप जोग्राफी च पढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर, ट्रोपोसफेयर, स्ट्रैटोसफेयर, ऑल दीज थिंग्स जोग्राफी च आप पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम, हीट बैलेंस, हीट बजट, ये सब कॉन्सैप्ट्स, ठीक है। कुछ कॉन्सैप्ट्स आप जोग्राफी च कवर कर देने हैं। आवले टॉपिक्स है जोड़े हार्डकोर इन्वायरमेंट दे है, ठीक है। देखो इन्होंने ब्रॉड गाइडलाइंस दे दित्तियां है, बट एवरीथिंग जे इन्होंने इन्वायरमेंट कहता तो मतलब आपां नूं इन्वायरमेंट बारे सब कुछ पढ़ना पैना है। आ देखो तुसी हुण एक्ट्स लॉज किते मैंशन नहीं किया, बट देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही जिहड़ा आया है एक्ट्स ते आया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट ते क्वेश्चन आ गया, तो एक्ट्स लॉज इन्हां ते क्वेश्चन आ सकते हैं। वैटलैंड्स, नैशनल पार्क्स हो जान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होन, पंजाब दियाँ चाहे इंडिया दियाँ, दोनों ते कोई आ सकते हैं, राइट। वो तो बाद वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के कॉन्सैप्ट्स ते, क्लाइमेट चेंज के फिनोमिनास ते, जिमें कि हीट वेव, कोल्ड वेव, ड्रॉट्स, फमीन्स, इस तरीके नाल इन्वायरमेंट रिलेटेड सारे कॉन्सैप्ट्स जेह्ड़े तुसी न्यूज़ च सुनते हो, किते भी सुनते हो, वो इंपॉर्टेंट है। कार्बन सिंक क्या होंदे ने, हर रोज़ तुसी न्यूज़ च देखते हो। मैंने भी करंट अफेयर्स च समझाया है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होंदा है, ये भी मैंने करंट अफेयर्स के सैशन च समझाया है। तो इसलिए तुसी करंट अफेयर्स भी फॉलो करते रहो तो बेसिक भी कवर करते रहो, ताकि तुहाडी होलिस्टिक प्रैपरेशन हो जाए, ठीक है जी। ये हो गया सैकेंड सबजैक्ट अपना इन्वायरमेंटल स्टडीज़, राइट। नैक्सट टॉपिक जी तो अपने क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्डर। पॉलिटिकल थ्योरी का की मतलब है, ये पॉलिटी तो डिफरेंट है। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब है बेसिकली आ बेसिक कॉन्सैप्ट्स तुहाडे फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट्स, नैशनलिज्म, सिटीजनशिप, सैकुलरिज्म, जेडे बेसिक आइडियाज़ है पॉलिटी दे, उन्हां ते क्वेश्चनस आ सकते हैं। ये लिए डेडिकेटेड तुहाडी एक NCERT है जिहदा नाम भी पॉलिटिकल थ्योरी ही है। उस चो तुसी ये सारे बेसिक कॉन्सैप्ट्स एटलीस्ट पढ़ सकते हो। पंजाब PCS तो चलो कितों भी पूछ सकता है, बट एटलीस्ट आप बेसिक कॉन्सैप्ट उत्थों क्लीयर कर सकते हैं आपते, राइट। कि बेसिकली फ्रीडम क्या होंदा है, इक्वालिटी क्या होंदी है। तो यही NCERT च काफ़ी सारे राइटर्स के भी नाम दिते हुए हैं। जॉन रॉल्स, महात्मा गांधी के आइडियाज़, नेल्सन मंडेला, ओंग सांग सू की, म्यांमार दी इंपॉर्टेंट लीडर, इस तरीके नाल काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स दी पॉलिटिकल थ्योरीज उत्थे डिस्कस की गई हैं। तो ये तुसी NCERT पढ़ के ये पार्ट कवर कर सकते हो, राइट। दैन फिर IR या इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन किन्ने भी आ सकते हैं, चाहे बायलैटरल रिलेशंस होन इंडिया के किसी कंट्री नाल, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशंस किन्नियां भी होन, सब ते क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो तुसी UN दी बॉडी ते क्वेश्चन आया है, ये मैंबरशिप, ये डिसीजनस ते, राइट। दैन G7 G8 ते क्वेश्चन आया है। इसी तरीके नाल इन्ना किसी भी मेजर ग्रुपिंग्स ते क्वेश्चन आ सकता है। ये सब ग्रुपिंग्स है ਜਿਹੜੀਆਂ अजकल न्यूज़ च रहिंदियां है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ने, तुसी लिख के भी रख सकते हो, तुहाडे इस ते नोट्स पूरे होने चाहिए है। आप ऑलरेडी क्वाड कर चुके हैं बहुत डिटेल विच, G20 आप ऑलरेडी कर चुके हैं करंट अफेयर्स की वीडियोज़ विच। तो इस तरीके नाल हर टॉपिक जिहड़ा कवर होंदा जाऊ, UN भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट ने, तुसी एटलीस्ट लिस्ट बना के रखो, इन्हां नूं तुसी कवर करना है जदों भी मतलब तुसी IR दी प्रैपरेशन करते हो, राइट। उस तो बाद नैक्सट टॉपिक जिहड़ा फोर्थ टॉपिक आप प्रिपेयर करना है, ये एक एग्जाम्पल भी है पॉलिटिकल थ्योरी ते कहे जे क्वेश्चन आते हैं। इनजस्टिस एनीवेयर इज़ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर की ने क्या सी ये अगर तुसी NCERT पढ़ोगे तो मिल जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो भी मिल जाएगा, ठीक है जी। यह जे क्वेश्चन जिहड़े ये पूछे जाएंगे। बेसिकली सैकुलरिज्म क्या होंदा है ये पूछा जा सकता है। 2-3 कन्फ्यूजिंग सोनू ऑप्शंस दे दिते जाएंगे जिस जो तुसी चूज़ करना होना है, राइट।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ, 4th ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰਸ ਲਿਖਤਾ, ਰਾਈਟ, ਸ਼ਡਿਊਲਸ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ, रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इलैक्टोरल रिफॉर्म्स, राइज ऑफ रीजनलिज्म वगैरह। तुसी देखो पॉलिटी ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, DPSP, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਲਈ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਕਰ ਲਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ। ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸਭ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ 'ਚੋਂ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਰਟੋਫਾਈ ਦਿਸ, ਰਾਈਟ। ਇਸ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕॉन्सेप्ट्स है वो सभी कवर करने हैं। PCS ने चाहे एक लाइन लिखी है, क्वेश्चन कितों भी आ सकता है, राइट। तो फिर इस तरीके नाल तुसी ये सब्जैक्ट प्रिपेयर करना है। दैन 5th इंपॉर्टेंट सब्जैक्ट जिहड़ा PCS च पूछा जाएगा दैट इज़ हिस्टरी ऑफ इंडिया। तो हिस्टरी च देखो सब कुछ आएगा, तुहाडा एंशियंट हिस्टरी, तुहाडी मिडीवियल हिस्टरी, तुहाडी मॉडर्न हिस्टरी, तुहाडी वर्ल्ड हिस्टरी, राइट। हिस्टरी ते इहदी भी मतलब 4 मेजर डिविजन्स च हिस्टरी तुहानूं पूछी जाती है, राइट। तो एंशियंट हिस्टरी होगी अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन तो शुरू करके गुप्ता पीरियड्स तक जिहड़ी अपनी इंटायर एंशियंट हिस्टरी है वो तुसी कवर करनी है। इत्थे देखो 4 ही टॉपिक्स लिखे ने बट काफ़ी डिटेल हुंदी है। महाजनापदास हो गए, मौर्यन अंपायर भी बहुत वड्डा सी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट, दैन इन्वेजन्स जिहड़ियां फॉरन इन्वेजन्स होईयां, अलेगजेंडर वगैरह, बहुत सारे कॉन्सैप्ट्स है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ओल्ड NCERT ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, RS ਸ਼ਰਮਾ, दैट इज़ मोर दैन इनफ। अगर ये NCERT ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ दैट इज़ वैल इनफ, राइट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मिडीवियल इंडिया, राइट, इस्लाम या सल्तनत पीरियड तो शुरू करके भक्ति मूवमेंट, मुगल्स, ये सब कवर करने हैं। दैट मीनस ये डिटेल अगर तुसी ਇਹਦੀ देखो गजनी ਦੇ रूल तो लैके गौरी, दिल्ली सल्तनत मतलब ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, बलबन, ये 4 जने। दैन खिलजीज, तुगलक्स, लोदीज, शेरशाह सुर। दैन इन कमिंग ऑफ मुगल्स च भी बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। तो कहने का मतलब है अगेन सारी दी सारी मिडीवियल हिस्टरी तुसी करनी है। इस 3 टॉपिक्स इन्होंने ये मैंशन करता तो इन्हों ते क्वेश्चन भी आते हैं। आ देखो क्लीयरली हरप्पन सील्स ते क्वेश्चन आया होया है, दैन जैनिज़म ते क्वेश्चन आया होया है, दैन इबन बतूता, राइट। मिडीवियल हिस्टरी का जो पार्ट है इस ते भी क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। हर पार्ट चो क्वेश्चन आना है, इसलिए तुसी ध्यान नाल सारी तैयारी करनी है। ये लिए भी एक ओल्ड NCERT है 12वीं क्लास की, SC चंदा, वो कर लोगे तुसी, दैट इज़ मोर दैन इनफ, राइट। दैन मॉडर्न हिस्टरी देख लो जी, 3 टॉपिक्स लिखे हैं इत्थे, 3 लाइनां लिखियां इन्होंने, बट तुसी देखो कमिंग ऑफ यूरोपियन पावर्स, दैट मीनस 1600 तुसी कह सकते हो 1600 ईयर्स दे अराउंड ये आए सी एज मर्चेंट्स, ठीक है। राज तो नहीं कर रहे सी बट एज मर्चेंट्स तो आ चुके सी। कमिंग ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, राइट, मतलब प्लासी दी लड़ाई तो, राइट। म्यूटनी ऑफ सिपोय म्यूटनी 1857 दी, दैन सारी नैशनल मूवमेंट, राइट। कैम का मोटा मोटा मतलब ये है कि 1700 ईयर तो लैके 1950 तक, जब तक ब्रिटिश रूल चलिया, राइट, 47 ला लो, 50s ला लो, ठीक है। तो ये पूरे 200 साल की हिस्टरी भी तुसी करनी है। जिन्ने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट्स है, बैटल ऑफ प्लासी, रिवोल्ट, स्वराज, डिवीजन ऑफ बंगाल, NCM, CDM, क्विट इंडिया मूवमेंट, सब कवर करने हैं इस, ठीक है। लाइना चाहे 3 लिखी हैं, क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे, राइट। दे फिर आ गया वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पंजाब PCS च वर्ल्ड हिस्ट्री जो पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स च 3 तो 4 क्वेश्चन एटलीस्ट ये पूछते ही ने, तो मेन्स च भी 1 तो 2 क्वेश्चंस तो आने ही है, राइट। तो वर्ल्ड हिस्टरी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो यार फिर बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं कि इत्थे सिर्फ आही लिखिया है तो सानू पता नहीं क्या क्या कराता। देखो ये ब्रॉड गाइडलाइन दे देंगे है तुहानू,
ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇसीलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਟਰੀਟੀ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਈਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਈਅਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ 2018-17 ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਹੈ ਮੇਨਲੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ 2021 ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਕ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 6th ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ, ਪਲਾਨਿੰਗ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 12 5 ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990s ਤੋਂ LPG ਦੀ ਵੇਵ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LPG ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਪਾਵਰਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। RBI ਹੋ ਗਿਆ, RBI ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, CRR, SLR ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ ਰੇਟ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਇਹ ਸਭ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ MPC, ਮੋਨੀਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ। MSP ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੌਣ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਸ਼ਮਸ ਲਾਅ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, right? This is how you have to combine your basic preparation with current affairs to achieve holistic preparation, ठीक है। तो इस तरीके नाल इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 7th सब्जेक्ट जिहड़ा तुसी कवर करना है पंजाब PCS दे प्रीलिम लई जोग्राफी। अगेन सारा एक्सटेंसिवली जोग्राफी तुसी कवर करना है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं दियाँ जो NCRTs है वो सब तुसी पढ़ो, राइट। स्पैसीफिकली वो 4 फेमस NCRTs ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੋਇਆ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਹੋਇਆ, ਓਸ਼ੀਅਨ ਕਰੰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਓਸ਼ੀਅਨ ਕਰੰਟਸ, ਕਿਹੜਾ ਓਸ਼ੀਅਨ ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਮਿਡ ਓਸ਼ੀਅਨਿਕ ਰਿਜ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਓਟਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਮਾਊਂਟਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਸ਼ੈਲਫ, ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਰਾਈਜ਼, ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਸਲੋਪ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਫੀਚਰਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਰਥਸ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਬਾਰੇ, ਮੈਂਟਲ ਕੋਰ, ਕਰਸਟ, ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ, ਸਾਰਾ डिटेल जी आपू जाननी पैनी है। दैन इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज, वोल्कैनोज, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, वैदर, मॉनसून, ये सब डिटेल्स अगेन आप पढ़निया है। सॉयल, सॉयल के टाइप, सॉयल के करैक्टरिस्टिक्स, एसिडिक सॉयल, बेसिक सॉयल कित्थे पाई जाती हैं, वेरीअस टाइप्स ऑफ सॉयल्स, राइट। तो इस तरीके नाल अगेन जोग्राफी जी है तुसी पूरी डिटेल च करनी है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस ते देखो लैंड फॉर्म्स ते क्वेश्चन आया है, यू शेप्ड वैली कित्थे हुंदी है, राइट। लैंड फॉर्म्स तुसी डिजर्ट लैंड फॉर्म ते क्वेश्चन आ सकता है, तुहानू रिवर्स, एस्चरीज, डेल्टास ते क्वेश्चन आ सकता है। रिवर्स दी लैंड फॉर्म्स भी तुसी कित्तियां होणगीआं, ऑक्सबो लेक्स हो गईयां, ब्रेडेड चैनल्स हो गए, यू नो मैच्योर स्टेज हो गई, यंग स्टेज हो गई। इस तरीके नाल तुसी रिवर्स बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़िया होना है, राइट। तो ये सारी डिटेल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸਟ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,
दैन मिस्ट इज़ फॉर्मड, ठीक है जी, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, एटमोसफेयर, तो इस तरीके नाल क्वेश्चन आ सकता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेनिसुलर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम ते क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इस तरीके नाल दीज आर सम एग्जाम्पल्स हाउ जोग्राफी तो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, राइट। इस तरीके नाल कॉम्प्रीहेंसिवली तुसी कवर करो। रिसोर्सिस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स से जिवें लीथियम बहुत न्यूज़ च है, कल ही आप करंट अफेयर्स डिस्कस किया, दैन दे कैन आस्क यू कि लीथियम ट्रायंगल क्या है, राइट, दैट इज़ अ रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन, राइट। हुण तुसी खुद चैक करो लीथियम ट्रायंगल क्या है, कल मैं तुहानूं दस चुकी, अगर तुहानूं नहीं पता तो तुसी 5th 6th मार्च वाली करंट अफेयर्स च देखो। इस ते होर भी बहुत पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहने का मतलब है दिस इज़ हाउ रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है जी। 8th टॉपिक जिहड़ा तुसी प्रीलिम्स लई प्रिपेयर करना है, करंट इवेंट्स ऑफ नैशनल एंड इंटरनैशनल इंपॉर्टेंस, सीधा ही लिखता है कि करंट अफेयर्स जो भी क्वेश्चन आएंगे, यही एरिया है जिहड़ा ओपन कर दिंदा है वास्ट पॉसिबिलिटीज़। नाउ PPSC कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर एनीथिंग, करंट अफेयर्स तो बहुत ही कुछ हुंदा है, हर सबजैक्ट कवर हुंदा है, हर टाइप की न्यूज़, तो इसीलिए अवार्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, राइट। बेसिक साइंस एंड नवी टैक्नोलॉजी जिहड़ी बनती रहती है उस ते क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट। तो इसीलिए कॉम्प्रीहेंसिवली तुसी करंट अफेयर्स जिहड़े है सिद्धी पंजाब दे नाल कवर कर सकते हो। असी ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिहड़े हैं तुहानूं वीक विच 3 बार कवर करा ही रहे हैं, राइट। नैक्सट है पंजाब, पंजाब दी जोग्राफी, पंजाब दी कल्चर, पंजाब दी हिस्टरी, इकोनॉमी सब पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो मतलब पंजाब भी आप कॉम्प्रीहेंसिवली प्रिपेयर करना है, राइट। सिद्धी पंजाब तुहाडी हेल्प करेगा पंजाब स्पैसीफिकली प्रिपेयर करने लई। असी डेडिकेटेड तुहाडे लई स्टडी मटीरियल ते कोर्स वगैरह भी प्रोवाइड करांगे। पहला क्वेश्चंस देख लैंने आपां। देखो अवार्ड्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि पंजाबी राइटर्स ने किस तरीके के अवार्ड्स किन्ने कौन सा अवार्ड जितया है, साहित्य अकैडमी हो, जनानीपीठ अवार्ड हो, ये जो बहुत सारे अवार्ड्स ने, तो पंजाबी राइटर्स नाल लिंक करके क्वेश्चन आ सकता है, राइट। दैन पंजाब गवर्नमेंट ने किहड़ा इंसैक्टिसाइड बैन किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने किहड़ा टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, राइट। पंजाब इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। दैन फिर आ देखो गुरु पीरीयड ते क्वेश्चन आया होया है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स वर्सेस जिहड़े दे दिते गए हैं एंड दैन दे आर आस्किंग यू कि यह वर्ड्स किस गुरु दे किस टाइम ते लिखे गए सी, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। दैट इज़ वॉट दे आर गोइंग टू आस्क यू फ्रॉम पंजाब। पंजाब दे हर आसपैक्ट ते पूछा जा सकता है, चाहे जोग्राफिकल फीचर्स होन, राइट। जिमें कि 2021 विच ही क्वेश्चन आया सी कि 4 ऑप्शनस दे दिते गए सी, 4 रीजनस पंजाब दे दिते गए सी, 4 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब दे दिते गए सी, तुसी उन्हां दी जोग्राफिकल फीचर्स मैच करने सी, राइट। तो मतलब हर आसपैक्ट ते क्वेश्चन आ सकता है, कहने का मतलब है डिटेल च आपां इहदी तैयारी करनी है, राइट। नाउ हुण इत्थे मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दी है जस्ट टू टीच यू एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन मैथड बहुत देखो फेमस है, तुसी भी बहुत सुनिया होना है, एंड एलिमिनेशन मैथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव टाइप आंसरस नूं अटैम्प्ट करने लई। तुसी कोई भी पेपर दे रहे हो, अगर उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 4 ऑप्शनस तुहाडे सामने है, तो तुसी एलिमिनेशन मैथड यूज़ करना ही करना है, राइट। दैट इज़ द बेस्ट वे टू अचीव। तो हुण आ देखो लेवेंसट्रॉम वॉज कोइंड बाय, ये देखो वर्ल्ड हिस्टरी का यू नो टॉपिक है या तुसी कह सकते हो टर्म है, राइट। अगर तुहानू बेसिक इस टर्म बारे पता है लेवेंसट्रॉम क्या हुंदा है, राइट। ये हिटलर ने ये आइडिया दिता सी टू क्रिएट अ ग्रैंड जर्मनी काइंड ऑफ, राइट। इन्हां दा कहना सी कि जिन्ने भी जर्मनस जिस भी एरिया च रह रहे हैं वो सारियां नू जर्मनी विच कंबाइन करके ग्रेट जर्मनी या लेवेंसट्रॉम बनाया जाएगा, जिथे जिहड़ी सारी जर्मन पॉपूलेशन है वो रिजाइड कर सके। इन्हां दा ये भी कहना सी कि जर्मन पॉपूलेशन काफ़ी वध रही है, तो दूसरे एरियाज़ भी जर्मनी जिहड़ा एक्वायर कर सकता है ताकि जर्मनस नू अच्छे तरीके नाल पॉपूलेट किया जा सके। मोटा मोटा ये आइडिया है, डिटेल विच तुसी पढ़नगे ही,
बुक्स विच राइट ना। हुण आपां नूं अगर बेसिक आइडिया पता है कि लेबनस्ट्रॉम क्या है तो आपां नूं ये नहीं पता कि किने कॉइन किया है राइट। किसी नूं भी इन्नी ज़्यादा नॉलेज नहीं हो सकती, आपां इन्ना नहीं मे बी पढ़िया हुंदा, बट बेसिक तो पता होना चाहिए लेबनस्ट्रॉम क्या है राइट। ना हुण कॉइंड बाय हुम, आपां नूं पता है कि लेबनस्ट्रॉम जर्मनी का कॉन्सैप्ट है राइट, हिटलर ने दिता सी जर्मनी का कॉन्सैप्ट है। तो तुसीं इत्थे नाम पढ़ के देखो, मैकेंदर, पीटर टेलर, डेविड हार्वे, रेडज़ल। अगर तुसीं ये नाम पढ़ोगे ना तो तुहानूं क्लीयरली पता चल जाएगा कि इन्हां चारां चों सिर्फ एक नाम है जो जर्मन साउंड कर रहा है राइट। हुण मैं तुहानूं इहदा आंसर नहीं दसूँगी, तुसीं खुद इंटरप्रेट करो। बाकी तीनों ऑप्शन जिहड़े है वो यूरोपीयन नाम ने, ज़्यादा यूके बेस्ड, इंग्लैंड बेस्ड नाम है या यूएस बेस्ड नाम ने। सिर्फ एक नाम है जो कि अलग है बाकी तीन नालों राइट। तो इस तरीके नाल भी तुसी ये आंसर ते पहुँच सकते हो, क्योंकि वो नाम जिहड़ा है उहदे नाम विच ही तुसी जर्मन टच देख सकते हो राइट। दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ एलिमिनेशन मैथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस राइट। इसलिए टेस्ट सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी है। अगर टेस्ट सीरीज़ तुसी प्रैक्टिस करते रहने हो तो एलिमिनेशन मैथड तुसी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी बेसिक नॉलेज रिवाइज करते हो, नाल नाल एलिमिनेशन टैक्नीक्स तुसी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सिद्धि पंजाब तुहाडे लई इहो जी ही एक टेस्ट सीरीज़ लियाएगा जिहड़ी कि तुहानूं काफ़ी यूज़ आएगी टू प्रैक्टिस योर बेसिक्स अलॉन्ग विद एलिमिनेशन मैथड। ठीक है, तुसी आपकी तैयारी सिलेबस कंप्लीट रखो ताकि तुसी टेस्ट सीरीज़ देने लई हमेशा तैयार रहो। उस असी वर्ल्ड हिस्टरी के पंजाब के नाल रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन जिहड़े तुहाडे लई पा रहे हैं राइट। तो इस तरीके नाल अगर तुहानूं इहदा आंसर गैस हो जाए विदाउट चैकिंग द इंटरनेट तो तुसी कमेंट्स जरूर लिखना। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि तुहानूं एलिमिनेशन मैथड समझ आ रहा है, तुसी कॉन्सैप्ट्स लगा पा रहे हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जिहड़े आपां नूं लॉजिकल रीजनिंग नाल ही करने पैंदे है एग्जाम विच। किसी नूं भी पूरा पेपर नहीं आंदा हुंदा। पूरे एग्जाम चों सानूं 30 तो 40 क्वेश्चन मसा आंदे हुंदे आ, बाकी सारे क्वेश्चन आपां आपदी लिमिटेड नॉलेज तो ही सॉल्व करने होंगे है एज मच एज पॉसीबल। ठीक है, तो कमेंट्स च ज़रूर लिखो, तो चाहे गलत चाहे सही कोई भी लगे आंसर ज़रूर लिखो प्लीज़। आई वॉन्ट टू सी कि तुहाडे माइंड भी उस तरीके नाल वर्क कर पा रही है या नहीं, या तुहाडी क्या सोच है राइट। ठीक है जी, ये हो गया अपने GS पेपर 1 बारे। हुण GS पेपर 2 का सिलेबस देख लैंदे आ, जिहड़ा अपना CSAT का पेपर है। ब्रॉडली ਇਹਦਾ सिलेबस है। पंजाबी ते इंग्लिश लैंगुएज के क्वेश्चनस आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब इस तरीके नाल तुहानूं पैसेज दे दिता जाएगा तो उस ते बेस्ड क्वेश्चनस होंगे जिहड़े तुसीं आंसर करने होंगे। बोथ पंजाबी ते इंग्लिश दोनों च आएंगे ये। ठीक है, एंटोनियम सिनोनिम्स मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड, सेम मीनिंग वाला वर्ड तुसी लभना है। इन्हां दी ग्रामर चो क्वेश्चन आ सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब कहता है पूरा इंग्लिश ते पंजाबी चो कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं लैंगुएज चों। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। मीनिंग्स ये देखो इंग्लिश च मीनिंग्स पूछे हुए हैं। इंजेनुअस का क्या मतलब है, इंसिपिड का क्या मतलब है, वेंटोसिटी का क्या मतलब है राइट। फिर पंजाबी के क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, स्पैलिंग्स ठीक करो, अर्थ दसो, अखान का अर्थ दसो। इस तरीके नाल पूरा पंजाबी तो इंग्लिश भी तुहाडा प्रिपेयर्ड होना चाहिए है अगर CSAT च तुसीं अच्छे नंबर लैने हैं राइट। दोनों हो गए इंग्लिश पंजाबी। मैं पिछली वीडियो चो भी तुहानूं डिवीजन तो दस ही चुकी, इत्थे डिटेल्ड सिलेबस दस रही हैं राइट। फिर देखो इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग पूरी आएगी। LR जिन्हों आपां कहने हैं बेसिक न्यूमैरिकल स्किल्स, परसेंटेज, मैगनीट्यूड, बोट वेस्ड क्वेश्चन, क्वांट जिन्हों आपां कहने हैं पूरी आएगी। दैन डाटा एनालिसिस, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, टेबल्स चार्ट्स दे दिते जाएंगे राइट। ये देखो PPSC ने क्लीयरली मैसेज दिता हुआ है, द टॉपिक्स लिस्टेड इन द सिलेबस आर ओनली इंडिकेटिव फॉर जनरल गाइडेंस। दिस शुड नॉट बी एज्यूम्ड एज अ एग्जॉस्टिव लिस्ट कि सिर्फ यही पूछणगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। दिस इज जस्ट टू गिव यू अ गाइडलाइन कि किस डायरैक्शन च PCS क्वेश्चन पूछेगा राइट। दिस इज़ हाउ क्वेश्चनस विल बी आस्क्ड। आ देखो तुहानूं फिर क्वांट बेस्ड क्वेश्चन देखो, तुहाडे डाटा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। इस तरीके नाल तुहानूं कुछ ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन दे दी जाएगी जिहदे ते बेस्ड क्वेश्चनस पूछ सकते हैं। डिस्टेंस टाइम बेस्ड क्वेश्चन, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चनस राइट, एज बेस्ड क्वेश्चन,
दैन आ देखो गैस अराउंड अ टेबल आर सिटिंग, इस तरीके के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन किदे कोले बैठा होएगा वगैरह। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, पल्प इज़ कॉल्ड पेपर, वॉट विल बी हैम्प कॉल्ड, असम इज़ कॉल्ड बीहू, केरला नाल क्या रिलेटेड है, फिर इस तरीके नाल लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। दैन रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन, फलाना टिमकाने का भरा है, भरा का भैन है, इस तरीके नाल तुहानू पता ही है काफ़ी एक्सटेंडेड क्वेश्चन जे पूछे जाते हैं, तुसीं गैस करना होंदा है आखिर च दो जणियां दा रिलेशनशिप। दैन क्लॉक बेस्ड डायरैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। उस तो बाद ट्रायंगल्स किन्ने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स किन्ने हैं, ये लभो, राइट। ये सब जस्ट एग्जाम्पल्स है टू इंडिकेट यू कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हर पार्ट कवर होंदा है PPSC च, एवें नहीं है कि यू नो लिमिटेड सिलेबस है, अनलिमिटेड सिलेबस है, सारा ही तुहानू कवर करना पैना है टू बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, राइट। दैट इज़ वॉट इज़ देयर इन द सिलेबस ऑफ पंजाब PCS प्रीलिम्स। अगर तुहाडा कोई भी डाउट है तो तुसीं मैनू मैसेज कर सकते हो, आई विल रिप्लाई टू दैट। कमेंट करके भी पूछ सकते हो, यू कैन कनैक्ट टू मी इन एनी वे पॉसिबल, DM कर सकते हो टैलीग्राम ते, टैलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उत्थे तुहानू कॉन्टैक्ट मिल जाना है मेरा, एंड देन यू कैन DM मी ऑल्सो, राइट। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।